Hello students, myself Jagdish Singh presenting plant water relations. Today's lecture is concerned with diffusion, osmosis and imbibition. Scope of the lecture: to know imbibition, imbibate and imbibant, to know diffusion, diffusion pressure and importance, to know osmosis, osmotic pressure and importance of osmosis, to know demonstration of diffusion and osmosis. Dear students, after this lecture you will be able to understand what is imbibition, imbibate and imbibant, what is osmosis, osmotic pressure and demonstration of osmosis, diffusion, diffusion pressure and how diffusion can be demonstrated, and importances of diffusion and osmosis. Now, imbibition. Dear students, imbibition is the process of adsorption of water or any other liquid by a colloidal substance without making solution with it. अब हम imbibate के बारे में जानेंगे. The liquid substance that is being absorbed is called imbibate. That can be water or any other liquid. ये पानी भी हो सकता है और कोई दूसरा liquid भी हो सकता है. Imbibant. Imbibant is the substance that absorb the imbibate. ये हाइड्रोफिलिक सबस्टांसेस हैं, इनमें प्रोटीन हो सकते हैं, सेलुलोज हो सकते हैं और स्टार्च हो सकता है. स्टूडेंट्स देखिए, जो अपने अंदर इम्बिबेंट है, जो अपने अंदर लिक्विड को एब्जॉर्ब करता है, पर्टिकुलरली वाटर को एब्जॉर्ब करता है. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस इम्बिबेशन प्रेशर. द प्रेशर डेवलप्ड इन एन इम्बिबेंट बाय इम्बिबेशन ऑफ इम्बिबेट इज कॉल्ड इम्बिबेशन प्रेशर. इम्बिबेट की एंट्री के बाद इम्बिबेंट के अंदर जो प्रेशर डेवलप होता है उसे हम इम्बिबेशन प्रेशर कहते हैं. द टर्म nowadays is replaced by metric potential. Dear students, I would like to explain imbibition pressure की इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है. अगर इसको इजीली हम डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं, एक बोतल के अंदर अगर हम ग्लास बोतल के अंदर अगर हम सीड डालते हैं, फिर उसके अंदर पानी डाल देते हैं, कुछ समय पश्चात एक प्रेशर उन सीड्स के अंदर पानी के इम्बिबिशन के द्वारा डेवलप होता है और वो प्रेशर उस ग्लास बोतल को तोड़ भी सकता है. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस इफेक्ट्स ऑफ इम्बिबिशन. इम्बिबिशन के क्या इफेक्ट पड़ते हैं? डियर स्टूडेंट्स, वॉल्यूम चेंज. एंट्री ऑफ इम्बिबेट इन द इम्बिबेंट कॉज एन इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ द लेटर. इम्बिबेट की एंट्री के बाद इम्बिबेंट का वॉल्यूम बढ़ जाता है. इसका कारण है जो स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं कॉलोइडल पार्टिकल्स के बीच में, वो इम्बिबेट के द्वारा भर दिए जाते हैं और ओवरऑल देयर इज एन इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ द इम्बिबेंट. डियर स्टूडेंट्स, हियर इज इम्बाइबेंट kept inside the petri dish. This is containing the colloidal substances like starch and proteins. When the imbibate, that is water, is drawn inside these seeds, they increase in the volume. This can be seen in that beaker. The seeds are swell up due to the imbibation. The water is entered inside the colloidal particles by the process of imbibation. This resulted an increase in volume of these seeds. Now, production of heat. Dear students, as the imbibate molecules are trapped in between imbibant molecules, their mobility is hindered. उनकी mobility जो होती है, उनके जो movements होते हैं वो hinder होते हैं, रोक दिए जाते हैं. This results in conversion of kinetic energy of imbibate molecules in the heat energy. This leads an evolution of the heat. Dear students, kneading of wheat, a common process of our daily life जो घरों में होता है, उसके अंदर एक
काइंड ऑफ हीट इज ऑब्जर्व्ड जब आटे को गूंदा जाता है। उसका कारण है जो कोलोइडल पार्टिकल्स हैं आटे के, वो जैसे ही वाटर इम्बाइब करते हैं एक उनकी काइनेटिक एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है और वो थोड़ा सा टेम्परेचर रेज कर देती है। नाउ नेक्स्ट इफेक्ट is development of imbibitional pressure. This is the pressure exerted by imbibate over the surface of imbibant molecules called imbibitional pressure. ये देखा गया है कि ड्राई सीड्स में ये 1000 एटमॉस्फेयर्स तक भी बढ़ सकता है। Now in the next slide we are taking importance of imbibation. Imbibation के क्या importance है हमारी डेली लाइफ में? The water is first imbibed by walls of the root hairs before the beginning of the process of diffusion in water absorption. जब रूट हेयर्स के द्वारा वाटर एब्जॉर्ब किया जाता है तो शुरुआत इम्बिबेशन से होती है, उसके बाद डिफ्यूजन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। सेकंड, वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय जर्मिनेटिंग सीड्स बाय दैट प्रोसेस। जो सीड जर्मिनेट होते हैं, जर्मिनेशन से पहले वाटर को अपने अंदर इम्बाइब करते हैं। थर्ड, हार्ड टेस्ट ऑफ द सीड्स आर ब्रोकन व्हेन दे इम्बाइब वाटर। द प्रोसेस हेल्प्स इन इमर्जेंस ऑफ द एम्ब्रियो एंड हेंस जर्मिनेशन ऑफ द सीड्स। जो हार्ड टेस्ट होती है सीड्स की वो टूट जाती है इम्बिबेशन, वाटर के इम्बिबेशन के द्वारा और एम्ब्रियो उससे बाहर आ सकता है। नाउ इम्बिबेशन बाय जर्मिनेटिंग सीड्स, आप देख सकते हैं स्लाइड के अंदर 8 स्टेजेस हैं डियर स्टूडेंट्स, जिनमें सीड्स वाटर इम्बाइब करते हैं और धीरे धीरे हम देख रहे हैं एच तक जाते जाते जो टेस्टा है वो टूट जाती है और जैसे ही टेस्टा टूट जाती है एक नन्हा सा एम्ब्रियो जो उनके अंदर छुपा रहता है दैट कम आउट। सो द इम्बिबेशन हेल्प्स इन जर्मिनेशन ऑफ सीड। बीजों में से नन्हा सा एम्ब्रियो बाहर आ जाता है, दैट इज जर्मिनेशन ऑफ सीड, और इसके लिए भी इम्बिबेशन रेस्पॉन्सिबल है। द वाटर मूव्स इनटू द ओव्यूल बाय विच आर राइपनिंग इनटू सीड्स बाय द प्रोसेस ऑफ इम्बिबेशन। जो ओव्यूल सीड्स के अंदर डेवलप हो रहे होते हैं वो भी वाटर को इम्बाइब करते हैं। नेक्स्ट, आर्चिंग और बेंडिंग ऑफ वुडन फ्रेम्स ऑफ विंडोज और डोर्स इन रेनी सीजन इज ड्यू टू इम्बाइबेशन ऑफ वाटर। डियर स्टूडेंट्स, ये बड़ी कॉमन सी ऑब्जर्वेशन है, हम चारों तरफ देखते हैं रेनी सीजन में दरवाजे और खिड़कियां बंद नहीं होते हैं, फूल जाते हैं, उसके पीछे भी इम्बाइबेशन एक प्रोसेस है, यानी कोलोइडल सबस्टेंस सेलुलोज जिसके वो दरवाजे और खिड़कियां बने हुए हैं वो वाटर इम्बाइब करते हैं और फूल जाते हैं, स्वेलअप हो जाते हैं, जो हमने एक पहला इफेक्ट इसका लिया था इम्बाइबेशन का। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट प्रोसेस, डिफ्यूजन। The process of movement of atoms, ions or molecules of solids, liquids or gases from the region of their higher concentration to the region of their lower concentration is called diffusion. This is the classical definition of diffusion, dear students. इसको इस प्रकार से भी डिफाइन किया जा सकता है, the movement of substances from the region of their higher chemical potential to the region of their lower chemical potential. Potential, dear students, is concerned with the amount. तो जहाँ संख्या है, ज़्यादा संख्या है, वहाँ से सबस्टांसेस का कम संख्या की तरफ फ्लो एक प्रकार से डिफ्यूजन कहलाता है। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में एक प्रक्रिया दिखाई हुई है डिफ्यूजन की। हमारे पास ऊपर दिखाए हुए डायग्राम में 2 गैसियस मॉलिक्यूल्स अलग अलग कंपार्टमेंट में हैं, बीच में पार्टीशन है। जैसे ही हमने पार्टीशन हटाया जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में मिक्स हो गए हैं। दिस इज ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। नाउ किस प्रकार से हम डिफ्यूजन को डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं? व्हेन ए ब्लॉक ऑफ कॉपर सल्फेट इज ड्रॉन इन ए बीकर ऑफ वाटर, इट गेट डिफ्यूज्ड इन द होल वाटर एंड मेक इट यूनिफॉर्मली ब्लू। डियर स्टूडेंट्स, 3 जार आपके सामने हैं, 3 स्टेजेस हैं। पहली स्टेज में हमने कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल उसके अंदर डाले हैं। जैसे ही डिफ्यूजन शुरू होता है थोड़ा सा कॉपर सल्फेट का जो क्रिस्टल है वो साइज़ में कम होता है और पानी का जो कलर है वो ब्लू होना शुरू होता है।
थर्ड स्टेज में स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं कि जो कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल है वो पूरे तरीके से डिज़ोल्व हो चुका है और जो कॉपर सल्फेट मॉलिक्यूल्स हैं वो डिफ्यूज़ होकर के पूरे पानी में फैल चुके हैं और जो वाटर कलर है दैट बिकम यूनिफॉर्म ब्लू। जो डिफ्यूज़न की प्रक्रिया है उसको हम यहाँ डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स के द्वारा। हमने इस बीकर के अंदर कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स अभी डाले हैं, इसके अंदर जो डिफ्यूज़न की प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है और थोड़े से कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स डिज़ोल्व हो गए हैं, डिफ्यूज़ हो गए हैं और उन्होंने वाटर कलर को थोड़ा सा ब्लू बना दिया है। नेक्स्ट स्टेज में हम देख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स कि इस एपरेटस को हमने थोड़ा पहले सेट किया था और इसके अंदर जो कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स हैं वो लगभग डिज़ोल्व हो गए हैं और डिज़ोल्व होने के बाद उन्होंने इस वाटर कलर को पूरे तरीके से ब्लू बना दिया है और दैट इज़ ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न प्रेशर। Now the pressure exerted by diffusing molecules in the process of diffusion is called diffusion pressure. Diffusion के प्रक्रिया के दौरान diffusing molecules के द्वारा जो प्रेशर exert किया जाता है उसे हम diffusion pressure कहते हैं। It can also be defined as the potential ability of the molecules to diffuse from an area of their higher concentration to their lower concentration. इसको हम कह सकते हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल की का वो पोटेंशियल, वो क्षमता जिससे वो अपनी ज़्यादा मात्रा से कम मात्रा की तरफ जा सके, डिफ्यूज़न प्रेशर कहलाता है। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस फैक्टर्स अफेक्टिंग डिफ्यूज़न। कौन कौन से फैक्टर्स हैं डियर स्टूडेंट्स जो अफेक्ट कर सकते हैं, इफेक्ट डाल सकते हैं डिफ्यूज़न पे। पहला फैक्टर हम ले रहे हैं टेम्परेचर। एन इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीजेज द रेट ऑफ डिफ्यूज़न। इसका कारण है क्योंकि टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी डिफ्यूजिंग मॉलिक्यूल्स को इम्पार्ट करता है और जैसे ही डिफ्यूजिंग मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मिलती है वो और तेज़ी से डिफ्यूज़ होना शुरू हो जाते हैं। सेकंड है डिफ्यूज़न प्रेशर ग्रेडियंट। जितना ज़्यादा डिफ्यूज़न प्रेशर ग्रेडियंट होगा डिफ्यूजिंग मॉलिक्यूल्स का उतना ही ज़्यादा डिफ्यूज़न होगा। थर्ड है मीडियम ऑफ डिफ्यूज़न। मीडियम जिसके अंदर डिफ्यूजिंग पार्टिकल्स को डिफ्यूज होना है उस पर भी डिफ्यूजन डिपेंड करता है। मोर कंसंट्रेटेड मीडियम ऑफ डिफ्यूजन स्लोज डाउन द रेट ऑफ डिफ्यूजन। दिस इज ड्यू टू द हिंड्रेंस कॉज्ड बाय मीडियम मॉलिक्यूल्स टू द डिफ्यूजिंग मॉलिक्यूल्स। अगर मान लीजिएगा डिफ्यूजिंग मीडियम कंसंट्रेटेड है तो वो डिफ्यूजिंग मॉलिक्यूल्स के लिए एक हिंड्रेंस पैदा करेगा और इससे रेट ऑफ डिफ्यूजन घट जाएगा और वाइस वर्सा। इसका उलट भी है, अगर डिफ्यूजिंग मॉलिक्यूल्स को मीडियम थोड़ा डाइल्यूट मिलता है तो वो ज़्यादा तेज़ी से डिफ्यूज़ हो पाते हैं। जैसा लास्टली इसमें कहा गया है रेट ऑफ डिफ्यूज़न इज़ फाउंड टू बी मोर इन वैक्यूम। अगर खाली स्थान है तो गैसेस का या पार्टिकल्स का या मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट ज़्यादा होगा, यानी डिफ्यूज़न ज़्यादा होगा। नेक्स्ट, डेंसिटी ऑफ द डिफ्यूजिंग पार्टिकल्स। The rate of diffusion is inversely proportional to the square root of the density of the diffusing molecules. Dear students, जितनी density ज़्यादा होगी उतना ही rate of diffusion कम हो जाएगा। Next, we are going to discuss importance of diffusion. Dear students, क्या importance diffusion के हैं plants के लिए? Let us take exchange of O2 and CO2 during respiration and photosynthesis occurs by diffusion. जो गैसेज हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस दोनों ही प्रक्रियाओं के दौरान डिफ्यूज़न की प्रक्रिया के द्वारा प्लांट के अंदर और बाहर जाती हैं। सेकेंड, लॉस ऑफ वाटर वेपर्स फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट दैट इज ट्रांसपीरेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न। जो एक्सेस ऑफ वाटर प्लांट्स के अंदर होता है जिसको वो वेपर्स के रूप में लूज करते हैं एरियल पार्ट से, वो भी डिफ्यूज़न की प्रक्रिया है। इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर थ्रू द रूट्स इम्बिबेशन इज फॉलोड बाय डिफ्यूज़न। जैसा हम पहले ले चुके हैं कि जब वाटर एब्जॉर्प्शन रूट्स के द्वारा होता है तो शुरुआती प्रक्रिया जो होती है वो इम्बाइबेशन की होती है और उसके बाद डिफ्यूज़न स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट, मिनरल्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय डिफ्यूज़न। जो मिनरल्स हैं डिजोल्व्ड फॉर्म में, those even are absorbed
by the plants या through the roots by the process of diffusion. Next, translocation of minerals also involve the process of diffusion. The minerals का translocation है xylem channels के through, that again involves the process of diffusion. Next, we are going to discuss osmosis, the process of net diffusion of solvent molecules, particularly water, from the region of their higher concentration to the region of their lower concentration through a semi permeable membrane is called osmosis. Solvent molecules का particularly water, क्योंकि solvent universal solvent, lone solvent in plants is water, उसका मूवमेंट उसकी ज़्यादा मात्रा से कम मात्रा की तरफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू ऑस्मोसिस कहलाता है. इसको हम इस प्रकार से भी परिभाषित कर सकते हैं, डिफ्यूजन अक्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम लोअर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन. हेयर कंसंट्रेशन स्टैंड फॉर द साल्ट कंसंट्रेशन. अगर किसी सॉल्यूशन के अंदर साल्ट कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो वो ज़्यादा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होगी और उसके अंदर पानी की मात्रा कम होगी, तो डेफिनेटली उस सॉल्यूशन की तरफ पानी का मूवमेंट होगा थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, अगर हमारे पास ऑस्मोटिक सिस्टम है तो. नेक्स्ट, आप देख सकते हैं चित्र में डियर स्टूडेंट्स, यहाँ एक वेसल दिखाई गई है, यू शेप्ड ट्यूब. यू शेप्ड ट्यूब में बीच में हमने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इस्तेमाल की हुई है. एक तरफ इसमें जहाँ लेस वाटर लिखा हुआ है, that side is having more salt concentration and less water concentration. दूसरी तरफ जहाँ less solute लिखा हुआ है, यहाँ पानी की मात्रा ज़्यादा है, solute कम है. Dear student, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू जब इनका मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है, अल्टीमेटली जो फाइनल डायग्राम है वो आपको राइट साइड दिखाई दे रहा है, और इसमें आप देख सकते हैं कि सॉल्यूट और सोलवेंट की जो मात्रा है वो यूनिफॉर्म हो गई है, यानी दिस इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ सोलवेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द लेफ्ट साइड टू राइट साइड. नेक्स्ट, वी कैन डिस्कस osmotic pressure. It is the extra pressure exerted from the outside to solution side in an osmotic system to prevent osmosis. अगर हमारे पास एक osmotic system है और उसमें osmotic entry वाटर की हो रही है, तो उस osmotic system में जिस तरफ वाटर एंटर करता है उस तरफ अगर हम एक्स्ट्रा प्रेशर डाल दें ताकि वो osmosis रुक जाए, that pressure is called osmotic pressure. इसको इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रेशर दैट कैन बी डेवलप्ड इन ए सॉल्यूशन सेपरेटेड बाय सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर. वो प्रेशर जो सॉल्यूशन साइड है किसी ऑस्मोटिक सिस्टम में, दैट इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर. इसको हम मेजर कर सकते हैं ऑस्मोमीटर के द्वारा, एंड यूनिट्स ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर आर पास्कल, atmosphere, bar, Newton per meter square, etc. Next, we can take students importance of osmosis. Absorption and cell to cell movement of water is the result of osmosis. पानी का absorption routes के द्वारा और एक सेल से दूसरी सेल तक जाना ये osmosis के द्वारा सुनिश्चित होता है. Second, growth of plants due to increase in size by turgidity of the cells is the result of osmosis. प्लांट्स की ग्रोथ होती है सेल्स के साइज के बढ़ने से, सेल्स का साइज बढ़ता है टर्जिडिटी की वजह से, और इसमें भी osmosis का बहुत बड़ा रोल है. टर्जिडिटी ऑफ द प्लांट पार्ट्स इज द रिजल्ट ऑफ osmosis. प्लांट्स के पार्ट का फूल जाना, सख्त हो जाना, दैट इज ऑल्सो रिजल्टेड बाय osmosis. नेक्स्ट, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा that we will discuss in the latter parts of the chapter is the result of osmosis. कि स्टोमेटा किस प्रकार से ओपन होते हैं, क्लोज होते हैं, उसके अंदर भी ऑस्मोसिस का बहुत बड़ा रोल है. नेक्स्ट, ग्रोइंग पॉइंट्स ऑफ द रूट्स रिमेन टर्जिड एंड हैंस दे कैन पेनिट्रेट इन द सॉइल इजीली. जो रूट्स के ग्रोइंग पॉइंट्स हैं वो वाटर को ऑस्मोटिकली अंदर ले लेते हैं, टर्जिड हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं, और फिर वो हार्ड सॉइल के अंदर पेनिट्रेट कर सकते हैं.
नेक्स्ट है मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट्स सच एज विल्टिंग ऑफ लीव्स ऑफ मिमोसा प्यूडिका, बस्टिंग ऑफ फ्रूट्स एंड स्पोरेंजिया एटसेट्रा आर द रिजल्ट्स ऑफ ऑस्मोसिस। अगर फ्रूट्स और स्पोरेंजिया प्लांट्स के वाटर ऑस्मोटिकली अंदर ले लेते हैं, साइज उनका बढ़ जाता है, एक प्रेशर उनके अंदर डेवलप होता है जिसकी वजह से उनकी बस्टिंग हो जाती है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस को हम डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स विद द हेल्प ऑफ थिसल फनल। ए थिसल फनल इज टेकन, its mouth is covered with egg membrane or any other semi-permeable membrane. It is inverted and filled with some solution up to the mark A. इस थिसल फनल को हम मार्क A तक किसी सॉल्यूशन के द्वारा भर देते हैं। Then it is kept in pure water in its inverted position for some time. इसको उल्टा करके हम कुछ देर के लिए प्योर वाटर के अंदर छोड़ देते हैं। Now water moves inside the thistle funnel and the level of the solution increases from A to B in the thistle funnel. thistle funnel के अंदर क्योंकि वाटर ऑस्मोटिकली अंदर आ रहा है थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, तो लेवल जो है वो A से B तक बढ़ जाता है। लेट अस टेक डायग्रामेटिकली, हमने दो डायग्राम लिए हैं डियर स्टूडेंट्स। ऑन द राइट साइड देयर इज थिसल फनल कंटेनिंग सुगर सॉल्यूशन अप टू लेवल A। नीचे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से इसके माउथ को हमने ढका हुआ है, कवर किया हुआ है। कुछ देर के लिए जब हम इसे छोड़ देते हैं इन्वर्टेड स्टेट में, प्योर वाटर में, तो हम देख रहे हैं कि वाटर ऑस्मोटिकली एंटर कर जाता है थिसल फनल में और जो लेवल है सॉल्यूशन का वो A से B तक बढ़ जाता है। दैट कैन बी सीन इन द डायग्राम। डियर स्टूडेंट्स, वी कैन डिस्कस होल पोटैटो। पूरा का पूरा पोटैटो एक ओस्मोस्कोप का काम करता है, यानी पूरा का पूरा जिस प्रकार से सेमी परमेबल मेम्ब्रेन अपने थ्रू वाटर को जाने देती है, उसी प्रकार से पोटैटो पूरा का पूरा अपने अंदर से वाटर को गुजरने देता है। इसके अंदर हमें क्या करना है, बड़ा सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, घर पे हम इसको या लैब कंडीशंस में वी कैन डेमोन्स्ट्रेट इट। डियर स्टूडेंट्स, ए पोटैटो इज टेकन, इट्स आउटर सरफेस इज पील्ड ऑफ विद द हेल्प ऑफ स्कैल्पल। स्कैल्पल की सहायता से हम इसकी जो आउटर सरफेस है उसको पील ऑफ कर सकते हैं, हटा सकते हैं। Its bottom is cut to make it flat so that it can be kept erect in water. इसकी जो बॉटम है उसको हम काट देते हैं ताकि ये वाटर के अंदर सीधा खड़ा रह सके। A cavity is then made inside the potato. फिर जो फ्लैट सरफेस है उसके अपोजिट साइड एक कैविटी बनाते हैं और उस कैविटी के अंदर शुगर सॉल्यूशन कुछ लेवल तक भर देते हैं। फिर पोटैटो को एक बीकर में रख देते हैं जिसके अंदर प्योर वाटर है। फाइनली हम देखते हैं कि हमने जितना शुगर सॉल्यूशन लिया था उससे कहीं ज़्यादा लेवल शुगर सॉल्यूशन का उस कैविटी में हो गया है। सो दिस शोज कि होल पोटैटो एक्ट एज एन ऑस्मोस्कोप। डियर स्टूडेंट्स, डायग्राम शो कर रहे हैं स्टेज 1 एंड 2। इन स्टेज 1 हमने शुगर सॉल्यूशन लिया है पोटैटो की कैविटी में लेवल A तक, और उस पोटैटो को हमने प्योर वाटर के अंदर रखा हुआ है। कुछ देर बाद हम देखते हैं विदिन एन आवर रिजल्ट्स कैन बी सीन कि जो लेवल है सॉल्यूशन का पोटैटो की कैविटी में वो B तक बढ़ जाता है। सो दिस शोज कि पूरा का पूरा पोटैटो एक ऑस्मोटिक सिस्टम का काम कर रहा है, ऑस्मोस्कोप का काम कर रहा है। डियर स्टूडेंट्स, हियर इज ए कैविटी। यहाँ हम एक कैविटी देख सकते हैं। ये हमने पोटैटो लिया हुआ था, इसके आउटर सरफेस को हमने पील ऑफ किया विद द हेल्प ऑफ स्कैल्पल। स्कैल्पल की सहायता से हमने इसको पील ऑफ किया था। इसकी बॉटम सरफेस को हमने कट किया था ताकि ये फ्लैट हो सके और पैट्री डिश या बीकर के अंदर खड़ा रह सके। उसके बाद ए कैविटी इज देन मेड ऑन द अपर साइड इन दैट पोटैटो एंड दैट कैविटी इज हाफ फील्ड, ऑलमोस्ट हाफ फील्ड विद द हेल्प ऑफ शुगर सॉल्यूशन। और फिर इस पोटैटो को रख दिया गया एक बीकर या एक पैट्री डिश में और कुछ समय के लिए छोड़ दिया गया। और फाइनली हमने देखा कि सॉल्यूशन इनसाइड या फ्रॉम द कैविटी इज ओजेज आउट। सो ये शो कर रहा है कि पूरा का पूरा पोटैटो एक ऑस्मोस्कोप का काम करता है। नाउ
students, we can differentiate diffusion and osmosis. Diffusion, it is the movement of solid, liquid और gas molecules. Osmosis के अंदर केवल और केवल liquid molecules का movement होता है. Second, presence of semi permeable membrane is not required. Diffusion में कहीं भी semi permeable membrane की जरूरत नहीं पड़ी है, जबकि osmosis is the process that occurs through semi permeable membrane only. तो ये दो major difference हैं dear students in diffusion and osmosis. Next, we can differentiate osmosis and imbibition. Osmosis is the process of movement of liquid molecules from higher concentration to lower concentration. यानी liquid molecules का उनकी ज़्यादा मात्रा से उनकी कम मात्रा की तरफ movement osmosis कहलाता है, जैसा पहले definition में हम ले चुके हैं. और imbibition, no concentration gradient is required in the process. Concentration gradient का कोई role यहाँ नहीं है. वाटर जब तक कोलोइडल पार्टिकल्स हैं मूव करता ही रहेगा उनके अंदर. सेकंड, ऑस्मोसिस के अंदर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की ज़रूरत पड़ती है और इम्बाइबेशन के अंदर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की कोई ज़रूरत नहीं है. द मोर डिफरेंसेस इन ऑस्मोसिस एंड इम्बाइबेशन, ऑस्मोसिस के अंदर कोई हीट नहीं निकलती है, जबकि हीट इज इवोल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ इम्बिबेशन. ये हमने देखा है. Next, the pressure developed is called osmotic pressure, which is up to 100 atmosphere. जो osmotic pressure है वो 100 एटमॉस्फेयर तक किसी भी सिस्टम के अंदर डेवलप हो सकता है. और इम्बिबेशन में जो प्रेशर डेवलप होता है दैट इज कॉल्ड इम्बिबेशन प्रेशर, और दिस कैन बी अप टू 1000 एटमॉस्फेयर.